Assalamualaikum everyone, I hope you are doing well. This is Zinia Shah and I welcome you all to STEM International. हम पढ़ रहे थे अपना एक चैप्टर नंबर 4 चेंज ऑफ हार्ट्स इन द लास्ट वीडियो और नाउ इट्स टाइम कि हम उसकी एक्सरसाइज को जो है वो स्टार्ट करें एंड सी के हाउ वेल कैन वी आंसर दोज फ्यू क्वेश्चंस जो कि उस पर्टिकुलर स्टोरी से रिलेटेड है एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दैट there are a few new things that we are going to learn including homophones, including pronouns और sentence structure की कुछ नई types. So आइए let's dive into the exercise and learn new things. So we're starting with the exercise now. The first question again MCQs देखते हैं. First one is Essen always wanted to. Essen हमेशा क्या चाहता था? To help others, to win games, to avoid supports or to teach others. So we have seen from the particular story कि Essen हमेशा games जीतना चाहता था. So the correct answer is to win games and that is the second option. The second MCQ is कि Essen did not like losing because Essen को हारना क्यों नहीं था पसंद? Number 1, it made him tired. Number 2, it made him angry. Number 3, it made him feel terrible. Number 4, it made him laugh. It was because it made him feel terrible. उसको बहुत बुरा फील होता था हारने से. तो therefore our correct answer is number 3. C. Who was the new student? जो नया student आया था वो कौन था? उसका क्या नाम था? Ali, Bilal, Hamza या Ehsan? It was Hamza. So the answer, the correct one is Hamza. D. How did Ehsan win the match? Ehsan ने मैच कैसे जीता? Number 1, by hard work, by luck, by cheating or by practice. तो हमने स्टोरी में देखा कि एहसन ने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया था तब जब हमजा नहीं देख रहा था. So that was cheating, right? Therefore our correct answer is the third, that is by cheating. E. What quality did Hamza show? हमजा ने क्या क्वालिटी जो थी वो दिखाई या उसमें क्या क्वालिटी थी? Number 1, anger. Number 2, jealousy. Number 3, enjoyment. Number 4, fear. एंगर तो गुस्सा नहीं दिखाया हमजा ने, जेलसी भी नहीं दिखाई हमजा ने, फियर या डर या खौफ ये भी नहीं दिखाया, उसने इंजॉयमेंट दिखाई थी, वो हर गेम को इंजॉय करता था. So the right answer or the correct answer is the third one, that is enjoyment. And now we move on towards our second question, which is going to be easy as well. जिस तरह आपने पिछला question किया है इसी तरह हाँ अगला question भी आप कर लेंगे. The first one is Ehsan could not bear. Ehsan को क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी? It was to lose. Number second is Hamza was very good at. Hamza किस particular sports में बहुत अच्छा था? That is badminton, exactly. Then we have Ehsan changed the dash secretly. Ehsan ने छुपके से क्या change किया था जब उसका और हमजा का match हो रहा था? The scoreboard. Hamza enjoyed playing even when he dash. Hamza game तब भी enjoy करता था जब वो हार रहा हो, right? When he did not score or did not win. Here we have Ehsan learned to enjoy games for their own. Ehsan ने games को किस चीज़ के लिए enjoy करना सीखा? For their own sake. हम इस sentence को by the end last paragraph में भी देखते हैं. You needed to enjoy the game for its own sake. These were the blanks. These were easy. I know आपको भी easy ही for sure लगे होंगे. And now we move on towards the third part. That is to answer the following questions. We have 5 questions. The first one is why did Ehsan avoid some games? Ehsan कुछ games को avoid क्यों करता था? That is हमने Ehsan के बारे में पढ़ा उसकी स्टोरी में कि Ehsan को हारना पसंद नहीं था. So जिन games में he thought he would not win वो उन गेम्स को अवॉइड कर देता था. The second one is what responsibility was given to Ehsan? Ehsan को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जब उसका और हमजा का मैच जो था वो रखा गया था? That was basically कि उसने स्कोर रखना था. So he was given the duty or responsibility of keeping score for their match. Third question is how did Hamza behave during the match? मैच में हमजा का बिहेवियर क्या था मैच के दौरान? So we have seen it on page 34, the very first paragraph. हम देख रहे थे कि हमजा was playing brilliantly but he was also playing with fun. वो फन कर रहा था, वो बहुत ही आराम से मज़े से गेम खेल रहा था, उसको कोई फियर या हारने का डर नहीं था. Then we have the fourth question. Why could Ehsan not sleep well after winning? Ehsan जीत के भी सो क्यों नहीं सका? And we have read about it. It was because Ehsan ने scoreboard बदल के cheating की थी. So this was why he could not sleep after
winning. The last one is what change did others notice in SN after the match? कि मैच के बाद SN में लोगों ने क्या चेंज देखा? तो SN बेसिकली इन्फ्लुएंस हुआ था और उसने हमजा से सीखा था कि गेम को गेम के लिए इंजॉय करना चाहिए, ना कि स्कोर बोर्ड की फिक्र करनी चाहिए और ना ही हारने जीतने का डर जो है वो अपने दिल में रखना चाहिए. सो ये चेंज SN की बिहेवियर में भी आया और लोगों ने फिर नोटिस किया. सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड विद the next part, which is page 36. We have two tables, words and meanings. तो कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे और वो वर्ड्स उनका मतलब क्या है, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो देखते हैं. The first word is defeat, मतलब loss in a game or competition. किसी भी गेम में हार जाना या किसी भी कंपटीशन में हार जाना उसको defeat कहते हैं. The next word is bear, which means to tolerate or accept. किसी चीज़ को tolerate कर लेना या किसी चीज़ को मान लेना, accept कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, इसको कहते हैं to bear. And then the third word is responsibility. Responsibility का meaning is given. It is duty or task given to someone. किसी को कोई duty दी जाए, किसी को कोई task, कोई activity दी जाए फुलफिल करने को, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज स्कोर बोर्ड और इसका मतलब है अ बोर्ड शोइंग स्कोर्स. ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर स्कोर्स आए उसको स्कोर बोर्ड कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज चीटिंग, मीनिंग एक्टिंग डिसऑनेस्टली टू विन. कोई भी चीज़ विन करने के लिए अगर ईमानदारी के साथ ना खेला जाए या एक्ट किया जाए तो ऐसे को हम चीटिंग कहते हैं. देन वी हैव टैली. टैली का मतलब अ रिकॉर्ड ऑफ स्कोर्स. स्कोर्स का जो रिकॉर्ड होगा कि कितना किसका स्कोर हुआ उसको हम टैली कहते हैं. द लास्ट वर्ड इज स्पोर्टिंग स्पिरिट और मीनिंग है फेयर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन गेम्स. के गेम्स में एक फेयर और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, मनफी ना सोचना कि हार गया तो क्या, या हार गया तो लोग क्या सोचेंगे, या बर्दाश्त ना करना इस चीज़ को, इसको सपोर्टिंग स्पिरिट कहते हैं. एंड दीज वर अ फ्यू वर्ड्स जो कि न्यू थे, यू लर्नड इट, और इसको जो है ज़रूर सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, मीनिंग्स को याद करना है. एंड वी मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ रीड एंड रिस्पॉन्ड. तो गाइस रीड एंड रिस्पॉन्ड में स्टोरी एलिमेंट्स की बात होगी. हमने लास्ट चैप्टर में नैरेटिव राइटिंग की, पैराग्राफ राइटिंग की उससे पहले, और हमने देखा कि उसमें भी डिफरेंट जो है वो पार्ट्स होते हैं पैराग्राफ के और या फिर नैरेटिव राइटिंग के. ऐसे ही कोई भी स्टोरी अगर लिखी जाएगी तो स्टोरी के भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे. सो लेट्स रीड अबाउट दैट. रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. नंबर 1, कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स क्या होते हैं? द पीपल, एनिमल्स और इमेजिनरी कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ स्टोरी. कैरेक्टर्स कुछ लोग, जानवर या फिर कोई ऐसे कैरेक्टर जो कि इमेजिनरी हो, असल में ना हो, तो उनकी जो कि स्टोरी को बना रहे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स कहते हैं. जैसे हमने अभी इस स्टोरी में चेंज ऑफ हार्ट में देखा, हमारे पास 2 कैरेक्टर्स थे, एहसन और हमजा का कैरेक्टर था. अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव सेटिंग. एक और एलिमेंट है स्टोरी का, सेटिंग. इट इज़ द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. वो वक्त या वो जगह जहाँ पे उस स्टोरी की जो पूरी की पूरी जर्नी होती है, जो स्टोरी बनाई गई होती है, वो कहाँ पे हुई, किस वक्त हुई, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सेटिंग. एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज़ प्लॉट. इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस दैट रिलेट टू द सेंट्रल प्रॉब्लम. इट हैज़ 3 पार्ट्स. प्लॉट जो है वो एक सीरीज़ है इवेंट्स की. जिस तरह हमने देखा एहसन पहले जो है वो हर गेम जीतना चाहता था, वो गेम नहीं खेलता था जिसमें उसको लगता था कि वो हार जाएगा. उसके बाद फिर हम अगली तरफ आते हैं और अगला इवेंट होता है कि हमजा के साथ उसका मैच होता है, और उसके बाद फिर इवेंट्स चेंज होते हैं और अब वो हमजा को ऑब्जर्व करता है और लास्ट में फिर वो खुद भी गेम्स को गेम्स के लिए ही इंजॉय करके खेलना शुरू कर देता है. तो ये सारे की सारी जो सीरीज़ थी जो कि उसके सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ रिलेट करी थी. सेंट्रल प्रॉब्लम ये था कि एहसन हार मानना बर्दाश्त नहीं कर पाता था और बाद में फिर वो हार के भी गेम को एंजॉय करना सीख गया. तो ये सारा का सारा इज़ बेसिकली नोन एज दी प्लॉट. प्लॉट का खुद एक बिगिनिंग होता है जहाँ पे हम कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. एंड द सेटिंग इज़ डिस्क्राइब. सेटिंग को डिस्क्राइब करते हैं कि कहाँ की बात है, कब की बात है. एंड द बिगिनिंग इंक्लूड्स हु, व्हेन एंड वेयर. कौन, क्या और कहाँ, इन सवालात को हम प्लॉट के बिगिनिंग में इस्तेमाल करते हैं. फिर द सेकेंड पार्ट इज़ मिडल. इट टेल्स अस अबाउट ऑल द एक्शन इन ए स्टोरी. जो भी एक्शन स्टोरी में हो रहे हैं वो सारे के सारे मिडल पार्ट ऑफ द स्टोरी बनाते हैं.
The third is the ending, which tells us how the problem or conflict is resolved. हमने देखा अपनी स्टोरी में जैसे एसेंट ने ऑब्जर्व करके हमजा के साथ गेम खेलने के बाद हमजा के एटीट्यूड और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कुछ सीखा और उसका जो प्रॉब्लम था, उसका जो इशू था कि वो हार नहीं मान पाता था, गेम को एंजॉय नहीं कर पाता था, वो सारा सॉल्व हो गया. So this was the ending. Now you'll have to read a story of your choice, for example fables, historical fiction, fairy tales, folk tales, realistic stories, and share it with the whole class. Identify story elements and silent letters in tricky words while reading your story. एक कोई भी स्टोरी आपकी अपनी पसंद की आप चूज़ कर लें. वो फेबल हो सकती है, कोई हिस्टोरिकल फिक्शन हो सकता है, कोई फेरी टेल हो सकती है, कोई रियलिस्टिक स्टोरी भी हो सकती है, और उसको आपने अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करना है. आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आपने उसमें से स्टोरी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. स्टोरी एलिमेंट्स जैसे हमने पढ़े कैरेक्टर्स, सेटिंग और प्लॉट, और उनको उसके अंदर फिर कुछ वर्ड्स होंगे जिसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं और कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जो आपको लगे, अगर आपको वो मिले तो फिर उनको अंडरलाइन कर लें. दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू. उसके बाद जनाब आ जाते हैं हम अपने अगले पार्ट की जानिब जो कि है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में आज हम एक नए तरीके के वर्ड्स सीखेंगे और उन वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स. आपने सुने भी होंगे और आपने यूज़ भी किए होंगे. तो आइए अब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वर्ड्स कौन से हैं. Homophones are words that are pronounced the same but have different meanings and spellings. They can be confusing if not used carefully. ये ऐसे words होते हैं जो कि pronounce भी same होते हैं, इनकी sound same होती है और लेकिन इनके जो meanings हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और साथ ही साथ इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. और बिकॉज इनकी साउंड सेम होती है इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है और हम एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिख के सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं जनाब. वी हैव पेयर एंड पेयर. जो AIR वाला पेयर है दैट इज़ आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, जो जोड़ा जिसका मतलब बनता है. और दूसरा पेयर इज इट्स अ फ्रूट, जो कि आपने खाया होगा, नाशपाती भी कहते हैं इसको. शी एट अ जूसी पेयर. एक और है हमारे पास होमोफोन का पेयर दैट इज राइट. टर्न राइट एट द कॉर्नर. राइट मतलब सीधे हाथ. एंड देन वी हैव अनदर वन. राइट इज अ डायरेक्शन. RIGHT इज द डायरेक्शन. एंड देन वी हैव राइट. WRITE. प्लीज राइट योर नेम क्लियरली. आप जब कॉपी पे राइट करते हैं, बुक पे इफ़ यू राइट समथिंग डाउन, यू राइट डाउन योर नेम और स्टफ, तो इसको WRITE कहते हैं. देन वी हैव अनदर वन विच इज़ हेयर एंड हेयर. HEAR. कैन यू हेयर द बेल, क्या आप सुन सकते हैं. एंड HERE. कम एंड सिट हेयर, इधर आके बैठे. वीक एंड वीक. WEEK. आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीक. हफ्ता, ये जो 7 days वाला वीक है, that is this. Then we have another one which is WEAK. He felt weak after the fever. के बुखार के बाद उसको कमज़ोरी महसूस हुई. तो this week WEAK means कमज़ोरी. कुछ questions हैं इन्हीं होमोफोन से related. These are interesting words. These are different words और also इससे जो है वो बहुत कुछ हम सीख भी रहे हैं, हम इनको यूज़ भी करेंगे सेंटेंसेस में. तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन अगला आ रहा है इज़ टू सर्कल द करेक्ट होमोफोन दैट बेस्ट फिट्स ईच सेंटेंस. जिसमें हम देख रहे हैं द फर्स्ट वन इज़ माई टीचर अलाउड या फिर अलाउड मी टू आंसर द क्वेश्चन. ALLOWED परमिशन दे देना और ALOUD ऊंचा. सो व्हाट डू यू थिंक? माई टीचर ऊंचा me to answer the question या फिर permitted me to answer the question? Permitted, right? So it's going to be ALLOWED. Then the second is I have 4 pencils in my bag. FOUR is a number whereas FOR is इसलिए. So we have how many pencils in my bag? We have 4 FOUR pencils in my bag. The third is there was a knot in the rope. KNOT वाला knot या फिर NOT वाला knot. NOT का मतलब होता है नहीं. KNOT का मतलब होता है जो गिरा होती है. रोप में गिरा थी. So there was a KNOT वाला knot in the rope. Then we have she blew out the candles. अब blew में 2 हैं, BLEW और
B-L-U-E, blew out the candles. Blue is a color and then blue is also to extinguish. तो B-L-E-W out the candles होगा and not Neela out of candles, right? Then we have the last sentence, that is the sun is shining brightly today. We have two suns, S-U-N, Suraj, or S-O-N, beta. So Suraj is going to be shining brightly, right? Therefore the sun, S-U-N, is shining brightly today. This was fun, right? We're going to go with the second part. Let's see case mein what we are to do. We have to make sentences with the following homophones to explain their meanings. Their मैं meanings बताऊंगी, sentences आप बनाएंगे. We have T-H-E-I-R, their का मतलब होता है इसका या उनका. तो this is theirs. Possessive एक जो है वो इसमें noun के तौर पे ये लिया जाता है. Then T-H-E-R-E आ जाता है. T-H-E-R-E there का मतलब होता है वहाँ. So this is a placement. ये चीज़ वहाँ, this is placed there. I was going there also. So you will make your own sentence. Then we have the other pair of homophones. We have meet, M-E-E-T, किसी से मिलना, and M-E-A-T, गोश्त. The next one is seen and seen, S-C-E-N-E होता है किसी particular जगह की बात हो रही है, कोई सीनरी है, कोई सीन है जो लैंडस्केप दिख रहा है आपको. और S-E-E-N का मतलब होता है कि देख लिया हुआ, सीन. Then we have flour and flour. Flour, F-L-O-W-E-R का मतलब फूल, और F-L-O-U-R is जो के आटा कह लें, आटा होता है. And we have blue. Blue हमने पहले भी पढ़ा in the previous question. उसमें B-L-U-E is a color, नीला, and the other one is B-L-E-W जिसमें we talk about extinguishing. So these were the sentences that are to be made by some of the homophones which are provided in this particular question. So students, this was the exercise chapter 4 change of heart की. हमने ढेर सारे questions भी किए, हमने उसके answers खुद बनाना भी सीखे. उसके अलावा हमने सिर्फ और सिर्फ आंसर्स बनाना नहीं बल्कि सोचना सीखा. थिंकिंग कैप्स वी डिड पुट देम ऑन. और उसके अलावा कुछ न्यू टाइप्स ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग होमोफोन्स, प्रोनाउंस, राइट, एंड ऑल्सो न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद कि आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही नहीं बल्कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने पैराग्राफ्स में भी इस्तेमाल करेंगे और अपनी डे टू डे एक्सप्रेशन में भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे. एंड विद दैट कीप प्रैक्टिसिंग, डू नॉट फॉरगेट दैट. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.